इक्विटी की क्या यहाँ से भी अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है? अब हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? Anuj, first of all, in my opinion, I'll tell you because it's a personal story. ये bull market चालू हुआ था 2019 में. When Nirmala, in fact, exactly 5 years ago, when Nirmala Sitharaman came and announced the corporate tax rate cut, as you said, and the market went up with a 1,000-point gap, 5% gap that particular day. कोविड में आके नीचे वापस टेस्ट किया था बट रुका नहीं, वापस बढ़ गया उधर. सो ब्रॉडली वी डबल्ड इन 5-6, डबल्ड अ बिट मोर देन दैट इन द लास्ट 5 years on the Nifty or the Sensex, however you will out there. So the question is, can you still make money? I think market is, bull markets have length. बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. कोई भी बुल मार्केट कहीं ना कहीं जाके रुकता है. कभी कभी 20-30 साल वापस भाव नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल जापान हैड अ बुल मार्केट, फिर 30 साल भाव नहीं आया. थाईलैंड, आई हैव जस्ट सीन द मार्केट charts of Thailand. For 30 years, they haven't reached the new highs that they reached in the 80s. So markets, we are very lucky, we're very blessed. Unlike China, Thailand, Japan, who haven't had new highs in almost a generation, investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of, ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying be very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जब लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. But as things remain, जो मैंने 40 साल में सीखा है, क्या सीखा है, remain invested in high quality businesses. Maybe change the portfolio from here and there, but remain invested. तो IPO मार्केट आपको लग रहा है कि इस समय थोड़ी ओवरहीटेड हो रही है या फिर एटलीस्ट एक साइन दिखा रही है कि एक दिन में 8 IPO आ गए थे, आपको पता है, एक आधा मुश्किल था, अभी 8 आ गए साथ में, प्लस ह्यूज IPOs. कल एक ही दिन में 2 बड़े IPO क्लियर हो गए. 2 बड़े IPO थे. You're going to get these Korean IPOs which are very well valued out there because the market cap is so good. So there is some froth developing in the IPO market. And जैसे आप जानते हैं, trees don't go to the sky, as they say. So I feel that at some point we will have liquidity suck out from the secondary market. Okay. रमेश सर, फिर इसी पर मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने इतने एग्जांपल्स लिए, क्या थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरी बात एक बार मनीष चौखानी जी से हो रही थी, कि अगले 10 से 15 साल में भारत में भी एक मैसिव बुल मार्केट आए जो पूरी की पूरी इस ग्रोथ को फ्रंट लोड कर दे, जो हम अगले 30 से 40 साल में जो हमारा ट्रांजिशन होना है उसको फ्रंट लोड कर दे, और हम अगले 10-15 साल में एक ऐसा टॉप क्रिएट कर लें जो आगे जाके हम भी ना हिट कर पाएँ? तो क्या ऐसा चांसेस हैं ऐसी चीज़ होने के? अभी क्रिएट करेंगे 15 साल अगले 10 से 15 साल में, और वो टॉप अभी पता नहीं कितना, वो शायद 5 लाख पे हो निफ्टी के, शायद 10 लाख पे हो, यू नेवर नो. लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर, 5 लाख निफ्टी हो तो मेरी तो जिंदगी पार हो जाएगी, बाकी देखा जाएगा. क्यों नहीं हो सकता 5 लाख निफ्टी भारत जैसे देश में, अगर जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके से कंपाउंड हो रहा है, और आप तो कंपाउंडिंग के बहुत बड़े फैन हैं, अगर 15-20 साल तक इसी तरीके से अर्निंग्स आती रही तो कंपाउंड होके हो जाएगा? I mean, it's difficult to say. See, India will have to go from a third world country to a third largest country, which we are happening. But per capita income is also increased. Yes. We need to increase that very desperately. If that happens, of course, it can happen out there. But इतनी सोच नहीं है, 5 साल आगे सोच रहे हो, it looks good, conditions look good. And despite some fear that the IPO market is getting heated, my thing is that broadly you should remain invested. Broadly you should remain invested. और आपने जो बात कही कि इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन क्या आप अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप प्रून कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? थोड़ा मैंने किया है, लाइटनड अप ऑन द मिड कैप बिकॉज आई एम बेसिकली अ स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टर. जैसे मेरे पुराने दोस्त राकेश जी बोलते थे दैट यू वांट टू बाय mid cap companies that become large caps as opposed to just buying large caps. So but the valuations ही थोड़े stretch लग रहे हैं मेरे को. So we have sold some and trying to transition into large caps.
राकेश जी की याद बहुत आती है वैसे, है ना? अरे कोई दिवाली उनके बिना मज़ा नहीं आता है। अभी 2 साल हो गए उनको, एंड इट जस्ट द जो उनकी महत्व की बात है अनुज, दैट पीपल really need to understand that he started with a few thousand rupees, and if you look at his career of how much he started with and what he made, he's compounded in dollar terms. In dollar terms, I think it's greater than 40%, which I think is a Guinness Book of World Records. I don't think, in fact, I know Warren Buffett has not compounded more than 20-21% over a 40-year career. Unfortunately, life cut him short. Otherwise, he would have kept on setting records of creating wealth generation. I think sometimes you appreciate people only जब वो when चले they're not जाते in present of you. हाँ। And I really do miss him and appreciate his teachings. बिल्कुल। खैर कई दिन है जब वो जिस तरीके की बुल मार्केट चल रही है, आई थिंक राकेश जी का हमेशा भरोसा था कि ये इंडिया में इस तरीके की बुल मार्केट रहेगी। वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे एकदम, बिल्कुल, मुझे याद है, हाँ। रिटेल इन्वेस्टर्स आएगा, इंडिया विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मुझे डांट दिया था एक बार उन्होंने, मुझे याद है। हाँ, वो डांटते थे, वो सबको भी डांटते थे, एंड इट वाज जस्ट ही वाज राइट। आई मीन यू नो, एक अच्छा किस्सा सुनाओ तो, एक कोई आदमी कभी थक जाते हैं उनके प्रिडिक्शंस करते करते, तो बोलते हैं ज़्यादा बोलता है, एग्जाम्पल। एंड देन आई वाज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर। सम क्रिटिक रोड अबाउट हिम दैट इफ ही डिलीवर्स ही एंट ब्रैगिंग। मतलब जो प्रिडिक्शन बोले थे वो सब सही हो गया, दैट इज नॉट ब्रैगिंग, दैट इज जस्ट अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स इन द कर्व। यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लार्ज कैप में आपने कहा कि इस समय फिर भी थोड़ा कंफर्ट है रिलेटिवली। क्या आप कैश में भी आ रहे हैं या फिर अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड, अभी फुल्ली इन्वेस्टेड रहने का ही प्लान है आपका? There is a transition when you sell something from the mid caps and move to large caps before you know what to buy. I think the transition, so I am holding some cash, waiting for opportunities or trying. मैंने कभी large cap seriously देखते नहीं हूँ, so I need to look at it a bit more seriously and invest in that. So I do have some cash now, but I have cash not because I'm bearish on the market. I have cash because I'm transitioning. I would like to be fully invested, and I'm looking for opportunities. And I think market for the next few months at least looks fine to me. Then we'll see if this Korean IPOs take up a lot of liquidity from the market. ओके, अच्छा रमेश सर, एक चीज़ जिसने मतलब आपने तो काफ़ी मल्टी बैगर्स ढूंढे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसने आपकी पिछले 2 साल में क्लियर कट एक आपको डिफ्रेंशिएट किया बाकी सबसे, वो था PSUs में इतनी बड़ी रैली को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसमें बड़ी बेट लेना, चाहे वो मज़गांव डॉक हो, डिफेंस के बाकी स्टॉक्स हों, चाहे वो रेलवेज़ हो। ये इस साइकिल में जो PSUs में जो बुल रन आया, उससे रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकता है, और आपने क्या सोचकर इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी पोजीशन ली थी? I think what market rewards is, you know, Warren Buffett has said it very well, Anuj, that in the short run, the market is a popularity machine. In the long run, it is a voting machine. जो सबसे जो चाहते शेयर थे 5 साल पहले, बैंक्स ले लो, FMCG कंपनीज ले लो, वो चले ही नहीं 4 साल, बिकॉज यू आर बाइंग पॉपुलैरिटी। अरे ये सबको बोल सकते हैं मेरे पास XYZ शेयर है, ABC शेयर है, टेक्स शेयर है, व्हाटएवर, बट जो रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी वो किसी देखना नहीं चाहता था। सो इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ शेयर बिकॉज इज अनलव्ड इज नॉट अ बैड शेयर। अपने की शेयर बाजार में द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रुपये की चीज़ 10 पैसे में 20 पैसे में खरीदने की, और वो शेयर अपने को रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी with a dividend yield to boost, with a very good dividend, and the earnings visibility was very clear on those shares. So I think investors should learn to think independently and value businesses. It's most important that you understand the valuation of the business. It's not very hard to do. लोग बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं. It's a matter of habit, understanding कि how is the market valuing this business. You don't buy a price, you don't buy past history, you value a business and buy it. तो आपने एक बार कहा था ना कि रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन तब जेब में चवन्नी होनी चाहिए। तो खैर चवन्नी थी, बट पीपल वांटेड टू बाय व्हाट इज पॉपुलर। ये चला नहीं, 5 साल इसके नहीं लूंगा, अरे चला नहीं, उसका देयर इज नो रीजन टू बाय। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द अर्निंग्स पावर, एंड आर यू गेटिंग इट विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड वी फेल्ट इन दोस शेयर्स वी वर गेटिंग इट एट दैट टाइम। अच्छा रमेश सर, लेकिन पिछले 3 महीनों में PSUs ने चलना बंद कर दिया, क्या अब ये ओवर राउंड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं। तो बट व्हाट अ ग्रेट रन दे हैव हैड। आई मीन यू नो,
30 गुना बढ़ गए, वो उसके बाद 20% घट गए, तो घट गए. I mean, there are a lot of other stocks in the PSU sectors, in the oil and gas sector, for example, in the engineering, in construction, that still looks good. I mean, no sure goes up all the time. Everything corrects. So it's just, it's a fallacy thinking. Everyone says, oh, I told you so, but you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, I think it's just... मतलब अभी भी यहाँ पे selectively काफी वैल्यू है I think PSU's bull market का जो leadership अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in the engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well. अच्छा रमेश सर, आपने एग्जांपल दिया था, उस प्योर एग्जांपल HDFC बैंक का जो आपके बेटे को गिफ्ट मिला था और जिसकी वैल्यू आज इतनी ज़बरदस्त हो गई. इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक कहा जा रहा है कि मिनी क्राइसिस है, क्योंकि सब लोग डिपॉजिट्स आ ही नहीं रहे हैं, सब लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं. पीएनबी को भी शायद डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसको QIP करना पड़ रहा है. तो क्या ये माना जाए कि वाकई में कुछ मिनी क्राइसिस है या फेज है कि चला जाएगा? A crisis is a financialization of Indian savings going on, and people have bet very aggressively on the stock market. I'm not really a big investor in the financial sector as such, so I don't have opinions. But, my sense is they'll do fine.